So Nitish Kumar, many people said, is the only one with credibility, with the kind of experience that can match Narendra Modi. And that is why many said when it comes to a real big battle for 2024, it is but obvious that Nitish Kumar should be the choice for the prime ministerial face versus a very, very formidable opponent in Narendra Modi, who's going to be looking for a third straight term. And Nitish Kumar also could be hoping exactly something like this. But what has happened? Now, in the last many months that you have seen, the I-India alliance taking shape, holding meetings in Delhi, in Bengaluru, in Patna, Nitish Kumar has ensured that he's got parties who do not look eye to eye, whether it's the Congress, whether it is the Aam Aadmi Party, the left and the Trinamool, all together. He ensured that. And what did Nitish Kumar want in return? Though he does not say it, but Nitish Kumar clearly was looking, ladies and gentlemen, at a larger political role. But clearly that has not happened. Now what Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal have done a little over 48 hours ago is a clear testimony to the fact that Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal do not want Nitish Kumar to be projected as the prime ministerial face. They instead have popped up the name of Mallikarjun Kharge as the prime ministerial face for the alliance. The Congress is in a bind, but so is Nitish Kumar. And when it comes to Lalu Prasad Yadav, remember there are a lot of conspiracy theories that he himself was pushing for Nitish Kumar up till a moment, but now apparently he's left him in the lurch. Nitish Kumar is a man of few words. He doesn't say much. He is not very controversial. The only thing that Nitish Kumar can be accused of, and what Lalu Prasad Yadav famously had said, paltura, that he continuously changes sides, whether he's doing business with the BJP, he's doing business with the RJD today. He's a chief minister of the state of Bihar for the longest time. He's made a lot of difference. He's also the first one who actually started the idea of a caste census / a survey in the country, something that has got the BJP on the back foot. But the conversation today, ladies and gentlemen, is on the silence of the man called Nitish Kumar. It's been a little over 48 hours since that entire meeting happened, since Mallikarjun Kharge has been named as the prime ministerial face, at least by Mamata Banerjee and by Arvind Kejriwal. So what has Nitish Kumar been doing in these 48 hours? He continues to be silent, but look closely at these two images on your screens. The one on the left is December the 20th, when Nitish Kumar is meeting with his MPs. This happened in the national capital. And earlier today, Nitish Kumar traveled to Bodh Gaya. He's met with the Dalai Lama. He continues to be very silent. But what also he's announced now is that on the 29th of December, that is just in the next few days, he's called for a national council meeting. There was already a national executive proposed. He's added a national council meeting. So is Nitish Kumar going to be taking a decision soon? Going by how Nitish Kumar, remember, really believes and does his politics, you cannot rule that out. I want to quickly introduce a panel of guests that are joining us, because this, remember, is going to be a very important conversation. The end of the year, December the 29th, will we see Nitish Kumar perhaps changing his heart yet again? Could he be deciding to dump the RJD in Bihar, do business with the BJP, not just in Bihar, but also be a part of the NDA? Many would say that is not possible. But we'll ask that question to Guru Prakash Paswan, who's spokesperson of the BJP, who's just going to join us. Gyan Ranjan ji is a political analyst. He leans towards the Congress. Shakti Yadav ji is national spokesperson of the RJD. And it's a pleasure and honor to have Neeraj Kumar ji, spokesperson of the JDU, here in our studios. And नीरज कुमार जी एक्चुअली थिंक्स लाइक नीतीश कुमार थिंक्स. ये वही सोचते हैं, वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार भी सोचते और बोलते हैं. तो गुरु, सबसे पहला सवाल आज नीरज जी से ही करते हैं, उसके बाद वील गेट ज्ञान एंड शक्ति जी ऑल्सो इनटू दिस कॉन्वर्सेशन. नीरज जी, चर्चाएं तो बहुत चल रही है सर, और हमेशा नीतीश कुमार को लेकर इतनी चर्चा होती है कि लोगों को लगता है कि अगर नीतीश कुमार ये फैसला ले लेते हैं तो सब कुछ बदल जाएगा, इंडिया अलायंस में भी और एनडीए में भी. तो क्या करने वाले हैं सर नीतीश? 45 एमएलए की पार्टी है जेडीयू, लेकिन जब से हमने ग्रैंड अलायंस बनाया उसके बाद सेंटर में नीतीश कुमार जी रहते हैं. नीतीश कुमार जी दिल्ली आए तब चर्चा, नीतीश कुमार जी कलकत्ता जाए तब चर्चा,
नीतीश कुमार जी की हर एक्टिविटी को वॉच करता है लोग। और जिस बात की चर्चा हो रही है इंडिया अलायंस में कि नीतीश कुमार जी अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं मीडिया में 24 घंटा चल रहा है। तो ममता बनर्जी भी असहज हैं, अरविंद केजरीवाल भी असहज हैं। इन लोगों ने तो प्राइम मिनिस्टर चेहरे नहीं, मैं बता रहा हूं जी, आप भी ये जानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई टक्कर दे सकता है इस अलायंस में और जिसको लेकर सब कोई एक साथ होगा, कंसेंसस होगा, वो सिर्फ नीतीश कुमार है। मैं बता रहा हूं। तो उन लोगों ने प्रपोज किया जैसे इनसाइड मीटिंग का कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जी उन्होंने डिजोन किया कि नहीं हम ये चुनाव के बाद तय होगा। अरे भाई ये सवाल नहीं है, सवाल है कि इंडिया अलायंस हमारा बना है एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के लिए। और हम लोगों ने साफ साफ कहा है कि भाई जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए। 3 सप्ताह में सीट शेयरिंग की बात की गई है, ज्वाइंट रैली होगी और हमारे लिए मूल मुद्दा है बीजेपी को हराना। अब यह सवाल तो कोई नहीं पूछता है कि हमारी मीटिंग जब पहली हुई उसके बाद एनडीए की बैठक हुई और एनडीए में 38 पॉलिटिकल पार्टी थे, जिसमें 20 ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां जिसका एक भी एमपी नहीं है, एक नॉट ए सिंगल एमपी है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये सीधी सीधी लड़ाई है। हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन चेहरा होगा, हमारे लिए इंडिया महत्वपूर्ण है। अभी 150 एमपी एक्सपेल्ड हो रहे हैं। अब इससे बड़ा डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के लिए कितना बड़ा खतरा हमारे लिए है। इससे बड़ा क्या होगा कि देश के उपराष्ट्रपति अपनी जाति बता रहे हैं। भाई तो क्या हो रहा है देश के अंदर में? तो देश बचेगा तब ना हम इंडिया अलायंस बचेगा। नीरज जी, आप कहेंगे देश बचेगा तब ये सब होगा, और गुरु सबसे पहले यही बोलेंगे कि देश में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑपोजिशन अपने सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। गुरु, आप मुझे एक बात बताइए, इससे पहले मैं ज्ञान और शक्ति जी के पास जाऊं, कि नीतीश कुमार स्टिल स्विच साइड्स, विल यू वेलकम नीतीश कुमार इनटू द एनडीए? गुरु, ही स्टिल एन एसेट फॉर यू और नॉट? No, Deepti, I think very warm good evening to you and all my listeners. And if you want to respond नीरज कुमार बहुत वरिष्ठ ऐसे ही आते हैं और लगातार इन लोग सुनते रहते हैं, कुछ लोगों को समझने की आवश्यकता है। नीरज जी और बंधन के इस बात से सहमत हुए। दूर में पटना में बैठक हुई, फिर में हुई, फिर मुंबई में बैठक हुई, ना नीति तय हुआ, ना नियत तय हुआ, ना नीति तय हुआ। आपका प्रोग्राम, आपका सारा कार्यक्रम क्या तय हुआ? क्या चेहरा छोड़ दीजिए आप, कोई कॉमन सेक्रेटेरिएट, कोई जॉइंट सेक्रेटेरिएट, कोई कॉमन सचिवालय बना क्या? ये बताइए आप। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल आप ही के पार्टी के पूर्व सांसद जिनको राज्यसभा में आपने भेजा था और अभी टीएमसी में है, पवन वर्मा जी, इन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि कोई भी सीट शेयरिंग को लेकर के कमेटी तक नहीं बनी है। चलिए उनको छोड़िए, पवन वर्मा जी को, केसी त्यागी जी, आप ही के पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, चीफ स्पोक्स पर्सन का ये पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक तरीके से ये बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से 1 साल आगे है, हम लोगों ने कोई तैयारी अभी तक नहीं की, हमें भारतीय जनता पार्टी सीखने की आवश्यकता है। और जहां तक संसद की बात, देखिए संसद की गरिमा और मर्यादा बरकरार रहे, इसके लिए मुझे जवाहरलाल नेहरू जी का स्मरण आता है। उन्होंने 1954 में एक चिट्ठी लिखा था प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को और उन्हें कहा था कि यदि सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा को बचाए रखने की आवश्यकता पड़ी तो सख्त से सख्त कार्रवाई। गुरु, आप बहुत पीछे चले गए, मैं आपको आगे ले जाना चाहती हूँ। गुरु आप बहुत पीछे चले गए, मैं आपको आगे ले जाना चाहती हूँ। देखिए टाइम लिमिटेड है और मैं चाहती हूँ कि आज इतने बढ़िया गेस्ट हैं आज शो पर, तो सीधे सवाल पूछे जाए। गुरु, मुझे ये बताइए, क्या नीतीश कुमार अभी भी एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं? यस या नो? नहीं, देखिए अभी तो किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार जी ने बिहार के 12 करोड़ लोगों के पीठ में जो अभी तो है, जो विश्वासघात किया है, at no cost, in any opportunity, Nitish Kumar ji will not be welcome to the fold of NDA. He doesn't deserve to be in the NDA anymore. For a person who has insulted a man from Mahadalit community, मुसर समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को विधानसभा के फ्लोर पे जो कहते हैं कि तुम काबिल नहीं थे, मैंने तुम्हें बना दिया, महिला विरोधी, दलित विरोधी, गरीब विरोधी, ऐसे विश्वासघाती व्यक्ति का कोई स्थान एनडीए में अब नहीं है। ठीक है, आप कहते हैं नीतीश कुमार विश्वासघाती है। नीरज जी ने ये बात सुन ली और जैसे मैंने कहा शो के शुरुआत में कि नीरज जी वही सोचते और बोलते हैं जो नीतीश कुमार सोचेंगे बोलेंगे, तो एक परसेप्शन तो आप लोग क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये फ्रेंडली फाइट है? शक्ति जी, आप इस समय थोड़ी सी टेंशन में नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने आज मीडिया से बात तो की और वो कहते हैं ऑल इज वेल, पर शक्ति जी द ट्रूथ इज, आप मुझे ये बताइए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट करते हैं एज द प्राइम मिनिस्टीरियल फेस? उनको बनाना चाहिए प्राइम मिनिस्टीरियल फेस?
जिस प्रस्ताव को स्वयं ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ही अस्वीकार किया और कहा कि चुनाव के बाद तय होंगे, ये बात स्पष्ट तौर पे जान लीजिए, बिहार ने एक शुरुआत की, एक पहल की सकारात्मक। आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, जब सब लोगों ने मिलकर करके देश की सभी उन पॉलिटिकल पार्टियों को एक मंच पर लाने में कामयाब हुए जो चाहते थे कि देश में लोकतंत्र और संविधान दोनों महफूज रहे और सुरक्षित रहे। हालात क्या है? लोग कहते हैं कि इशू इस देश के अंदर में क्या है? आम आदमी का इशू क्या है? महंगाई है, बेरोजगारी है, युवा चाहता है, रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है। वो काम राज्य सरकार कर रहे हैं नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर में। जो लोग कह रहे हैं कि ऑल इज वेल नहीं है, तो जरा उनसे मैं जानना चाहता हूं कि एनडीए के घटक दलों में क्या सीट के बंटवारे हो गए? किसी चैनल ने तो नहीं पूछा? जो छोटी छोटी पार्टियां जो एनडीए के घटक दल के रूप में शामिल हो चुके हैं इंडिया गठबंधन में, उनके बारे में पूछे कि शक्ति यादव जी, आप भी मेरे सवाल से ना, आप भी मेरे सवाल से दूर हो रहे हैं। प्लीज, तो मैं आपको दोबारा सवाल बोलती हूँ, क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या आरजेडी उनके चेहरे को सपोर्ट करती या नहीं? खड़गे जी ने क्या कहा उस पर मत जाइए, मुझे आरजेडी का स्टैंड बताइए सर। मैं पूरी तौर पर बता रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल इस बात का पक्षकार है, शुरू से रहा है। और जब जो मैजिक जो अंक हैं आने के बाद में दलित भी हो सकते हैं, पिछड़ा भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, तो पिछड़ा भी हो सकता है, और 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे काबिल लोग हैं इंडिया गठबंधन में जो वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा पात्रता रखते हैं। नेता लोग कुमार जी के बारे में और नीतीश कुमार जी के अंदर तो सबसे वरिष्ठ मुख्यमंत्री होने का सवाल है, पहले ही से मौजूद है। सवाल को घुमा दिया आप। अच्छा चलिए एक लास्ट कोशिश करती हूँ शक्ति जी, एक लास्ट कोशिश करती हूँ। नीतीश कुमार को क्या प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करना चाहिए या मल्लिकार्जुन खड़गे? मैंने फिर आपको दोहरा दूं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कभी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन पात्रता का जब सवाल आएगा तो देश के वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में से एक है। राज्य और केंद्र दोनों चलाने का अनुभव है या नहीं है ये बताइए। नेशन चलाने का अनुभव है, आपकी इच्छा है या नहीं है? मैं बिहारी हूं, मैं तो बिहारी हूं, मेरी अगर इच्छा जानिएगा तो सबसे पहले मैं कहूंगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की जो सब घटक दलों की राय होगी, अंतिम निर्णय होगा। मेरी पहली पसंद नीतीश जी के बारे में कह दूंगा, इसलिए कि सबसे ज्यादा परफेक्ट भी है। नीरज जी जवाब दे दिया उन्होंने आपको कि मैं बिहारी हूं, इच्छा तो मेरी समझ लीजिए। बट नीरज जी सुन रहे हैं, शक्ति जी, नीरज जी सुन रहे हैं। मैं क्विकली ज्ञान को लाती हूं इन दिस कॉन्वर्सेशन। ज्ञान, द प्रॉब्लम इज द कांग्रेस, नो? कांग्रेस खुलकर नहीं सपोर्ट कर पा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे को। और आप मुझे बताइए, आपने नीतीश कुमार जी का इतना इस्तेमाल किया, यू मेड हिम रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ही इज बीन वर्किंग सो हार्ड एंड यू डिड नॉट इवन इंश्योर दैट योर नेम एज अ कन्वीनर। ज्ञान, I mean, is that the way you should treat someone like a Nitish Kumar? So this, Dipti, this is your perception that you have not given. Chief Minister Nitish Kumar is a very important person, and for the India Alliance, he is the only one who has tangled the entire bits in a one garland. So he cannot ignore that. And apart from that, what you're trying to say, see, we are. So why have you not named him as a convener at least? Gyan, I know his qualities. Tell me something. Why has the Congress not named Nitish Kumar as the convener or the chief ministerial face, the prime ministerial face? Why haven't you done that? Answer. Dipti, I got your answer. I'm replying that only. Please listen. Please bear with me for 2 minutes. See, it is not only Congress, it is the entire team. And everyone knows that there is an agenda, there is a strategy, there is a roadmap, and there is a campaign planning going ahead. And if you see that there are 4 meetings going on, and that there are the subcommittee has also been formed, and they are working for the most important issue that is called common minimum agenda. It is all. But that is not the answer, no. Gyan, that is not the answer. You are also skirting the issue. जैसे शक्ति यादव जी और नीरज जी ने बहुत डिप्लोमेटिकली इस सवाल का जवाब दिया। ज्ञान, आप भी वही कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, आपको लगता है नीतीश कुमार इस समय एसेट है इंडिया अलायंस के लिए? नहीं। आप सोच सकते हैं कल वो आपके अलायंस से निकल जाएंगे तो आपकी क्या हालत होगी? मतलब आप 2024 तो छोड़ ही दीजिए, बिहार भी आपके हाथ से जाएगा। डिप्टी नीतीश कुमार जी बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठतम है, एवरीवन नोज अबाउट इट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट विद रिस्पेक्ट टू द बिहार ओनली, दैट द बिहार हैज ऑलवेज गिवन द every direction to the entire country, and he is the one who directed it. So let's get the magic number now first. Let's get the magic number, and you know the working style of Nitish Kumar and Congress.
he deserved it, and once the magic number will come, of weapons. Have you ever thought of Manmohan Singh that is going to be the Prime Minister of India? Nobody has even thought of it. So don't worry about that. No. You are also Gyan, No. citing history because you don't have an answer. You don't have an answer. Let me get नीरज जी back into the conversation. नीरज जी, अब देखिए ये कांग्रेस की स्थिति है. अगर आप हिंदी हार्टलैंड की बात करते हैं सर, नो मैटर आप लोग कितना अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि अगर वो 200 सीट जिस पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा सीधा मुकाबला है और उसका स्ट्राइक रेट पिछले इलेक्शन में 5% था, अगर इतने कम स्ट्राइक रेट के साथ कांग्रेस काम करती है सर, नो मैटर व्हाट यू पीपल डू, कांग्रेस तो आप सबको डुबो देगी. नहीं, देखिए, सबसे पहले बात तो मैं गुरु प्रकाश जी को बता दे रहा हूं कि आपने कहा कि पीठ में खंजर मारा. हाँ. तो 2017 में आप कैसे मेरे साथ आ गए थे? आप तो जनता के जनादेश का सम्मान नहीं किए. 15 में तो ग्रैंड अलायंस को मैंडेट मिला था और आपने जीतन राम मांझी जी के बारे में कहा कि उनका अपमान हुआ, तो हमने तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आपने बाबू जगजीवन राम के छात्रावास योजना को बंद कर दिया. इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है राजनीति में. लेकिन चलिए आगे, अब आगे बात. मूल विषय यह है कि इंडिया अलायंस के आर्किटेक्ट नीतीश कुमार जी हैं और बीजेपी कितने सीटों पर है? 40 से 50 सीट के बीच अगर हम इनको घेरेंगे तो इनकी कहानी खत्म है. जो अजय का स्थिति बना हुआ है, तो अभी जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन रिजल्ट हुआ, 3 स्टेट में बीजेपी जीत गई, तेलंगाना में हार गई. वहां पर भी नरेंद्र मोदी जी रोड शो किए, वह अपोजिशन पार्टी भी नहीं बनी. हाँ. पूरे साउथ से बीजेपी साफ. नॉर्थ ईस्ट जाने का मणिपुर के बाद इनको हिम्मत नहीं हुआ, चुनाव में इलेक्शन प्रचार में नहीं गए. तो मैं आपके माध्यम से यह जरूर कहता हूं कि जो अलायंस हमारा इंडिया अलायंस है और जो हम लोगों ने तय किया है कि सीट शेयरिंग को, चाहे वो बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, विभिन्न राज्यों में अगर हम लोगों ने इसको 400 सीट अगर डायरेक्ट 1-to-1 फाइट की स्थिति पैदा कर दी जी, तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे, इंडिया जीतेगा. अगर कांग्रेस इसी तरह का प्रदर्शन करेगी, मुझे नहीं पता भी ज्ञान हमारे साथ है या नहीं, बट वील ऑल्सो गेट ज्ञान इनटू द कॉन्वर्सेशन इन अ बिट. बट शक्ति यादव जी, मुझे ये बताइए कि आपकी तो स्थिति बहुत विकट है इस समय. नीतीश कुमार जी ने नेशनल एग्जीक्यूटिव के साथ नेशनल काउंसिल की बैठक बुलाई है सर 29 तारीख को. लालू प्रसाद यादव कहते हैं सब कुछ सही है, ऑल इज वेल इन द अलायंस. लेकिन अगर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ जाते हैं सर, तो तेजस्वी को चीफ मिनिस्टर बनाने का सपना भी टूट जाएगा आपका. देखिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं होता. सबसे पहले हर पॉलिटिकल पार्टियां राष्ट्रीय परिषद की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाती है. ये कोई नया नहीं होता है और लगातार जब कोई अनुमोदन होता है किसी निर्णयों का तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई ही जाती है. ये नॉर्म्स है ऑर्गेनाइजेशन का. और आपने जो सवाल सामने किया, जब दोनों नेताओं ने साफ कहा, तो जो ई फॉर बट जो परसेप्शन बनाने की कोशिश है कुछ सर्टेन प्लेटफार्मों की, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे. क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है, हम लगातार कहते हैं कि बहाव के कारण और बिखराव के कारण कभी कभी उन दलों को जनादेश मिल जाता है जो देश में तानाशाह और लोकतंत्र को कुचलते हैं. आज जिस तरह से डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ, पार्लियामेंट के अंदर में जाति बताने की बात हुई, आदरणीय लालू प्रसाद जी को जिस तरह से तंग और तबाह किया गया, इस देश के भारतवर्ष के यादवों का अपमान नहीं हुआ क्या? अपमान नहीं हो रहा क्या? एक ऐसे नेता जिन्होंने देश की राजनीति के कैसे धुरी है, पिछड़ों का, दलितों का अपमान नहीं हुआ, जिन्होंने सोशल रेवोल्यूशन कायम करके लोगों में आवाज दी, चेतना दी, राजनीतिक जागृति पैदा की. देश देख नहीं रहा है क्या? आप जाति गिना रहे हो, किसानों पर आप हमले कर रहे हो. छोटी सी बात बताइए सर, फिर मैं गुरु के पास जाऊंगी. आप देखिए, ओबीसी कास्ट सेंसस को लेकर नीरज जी आप भी मानेंगे, राहुल गांधी ने चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह इतना बड़ा इशू बनाया. उन्होंने कहा जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम ये सर्वे कराएंगे. लेकिन उसके बावजूद अगर कांग्रेस ये चुनाव हार जाती है और वो भी इतनी बुरी तरह, तो ये तो माना जाएगा ना शक्ति जी की कहीं ना कहीं वो कार्ड आपका नहीं चला है और कांग्रेस की गलतियों का खामियाजा आपको भी उठाना पड़ेगा क्योंकि आप सब अलायंस में हैं. शक्ति जी, मैं एग्री नहीं करता. कास्ट सेंसेक्स का मतलब था सबका विकास. एक इन्वेस्टिगेशन था, एक हमारा रिपोर्ट था कि किस जाति में क्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां हैं और हम उसको कर दिखाया. बिहार ने एक नजीर पेश किया. और एक बात मैं खुले मन से कहता हूं, अगर किसी के टिकट बंटवारे में, किसी के आप धरातल को समझने में अगर कोई भूल करती है तो इसका इल्जाम आप कास्ट सेंसस को नहीं दे सकते हैं. जाति आधारित करना एक व्यापक सवाल है देश के अंदर में. आज जो भुखमरी है, लाचारी है, अब बताइए कि हंगर इंडेक्स में देश कहां खड़ा? देश का विकास क्या हुआ 9 वर्षों में?
अब शक्ति भुखमरी जी, में हम कहाँ हैं? अंग्रेजी में किस हालात कहते हैं हैं? यू डोंट डॉलर क्या स्थिति में है? आप क्या अगर किस- समय रहते राइटिंग ऑन द वॉल नहीं समझते तो ये दिक्कत होती है. बट गुरु, आई जस्ट हैव द लास्ट 10 seconds and I'll give it to you. You say Nitish Kumar is a spent force today. You don't believe in Nitish Kumar anymore. But do you believe that Nitish versus Modi or a Modi versus a Kharge, which do you believe is a better battle today? No, this is 10 not. seconds. My friends have responded. Let me give me uninterrupted 30 seconds as well. तो नीरज जी ने कहा हम नॉर्थ ईस्ट में नहीं है. जहां तक मेरी जानकारी है, असम के मुख्यमंत्री बीजेपी से आते हैं, अरुणाचल के मुख्यमंत्री बीजेपी से आते हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बीजेपी से आते हैं, मेघालय में हम अलायंस में हैं, नागालैंड में हम अलायंस में. तो ये कह देना बिना तथ्यों के कि नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी गायब हो गई है, मुझे लगता है तथ्य और तर्क एक बार देख के आना चाहिए. आज देश के इतिहास में पहली बार विदेश मंत्री दक्षिण भारत के हैं, वित्त मंत्री दक्षिण भारत के हैं, हमारी सरकार पौंडीचेरी में है, कर्नाटक में हमारे 29 सांसद आते हैं, तेलंगाना में हमारा वोट प्रतिशत है. तो मुझे लगता है ये देख करके आने की आवश्यकता है. नीतीश कुमार जी को मैंडेट 2010 में किसके साथ मिला था? 2012 में किसके साथ चले गए? 2020 में किसके साथ मिला था? किसके साथ चले गए? तो नीतीश कुमार जी से बड़ा विश्वासघाती भारत की राजनीति में और कोई नहीं हुआ है. उनसे बड़ा कोई दलित विरोधी. सदन के पटल पे महिलाओं के संदर्भ में इतनी ओछी, हल्की और सरहीन टिप्पणी करना, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ठीक जी है. के चरित्र, चाल और चेहरे के लिए इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला जा सकता है. और गुरु, आप ऐसे दिन ये महिलाओं का मुद्दा उठा रहे हैं. मैं क्लोज करूंगी ये डिबेट, बट आई एम श्योर दिस इज अ फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन. शक्ति जी, समय खत्म हो गया है, लेकिन आज ही के दिन जब ब्रिजभूषण शरण से जुड़ा एक व्यक्ति WFI का नया प्रेसिडेंट बनता है गुरु, साक्षी मलिक और एक तमाम सेकंड, रेसलर्स का एक प्रेस सेकंड, कॉन्फ्रेंस एक होता है, सेकंड, साक्षी एक breaks down in सेकंड, front of live television please, cameras. please, 10 That is seconds, also please, that 5 is also a seconds. commentary on what we Only do 5 for our seconds. sportsmen and what more can be done. गुरु, शक्ति जी, समय बिल्कुल खत्म हो गया सर. समय खत्म हो गया, but we'll keep 5 seconds, this please. conversation on. देश I के- just want to thank देश Guru, के- Shakti देश ji, के- Neeraj देश ji, के and also प्रधान- Gyan for joining us. What will Nitish Kumar do? We are keeping our eyes on that.